Good morning, everyone. Welcome to Behind the Mask Show, where I, Anamika, And I, Shrestha, welcome you all to discover human behind doctors. before proceeding, I really want to tell you something, Shrestha. क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आज थोड़ी नर्वसनेस लग रही है, नर्वसनेस क्यों है? क्योंकि आज के गेस्ट वो हैं जो हमारा वाइवा लेते हैं. Welcome to our show, ma'am. It's Behind the Mask Show. I welcome Dr. Sona ma'am, Dr. Jyoti ma'am, and Dr. Benazir ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डू यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द ऑर्थोडोंटिक्स? इफ नॉट, what would you be? For me, it was always a dream to become an orthodontics. आपने पहले से सोच के रखा था कि Not while I was doing BDS, but yes, after I did my practice, I was pretty sure that it is orthodontist if I Lifelong have to perception, become. ना? What was that one moment जो आपको ऐसा क्लिक हुआ कि yeah, this is what I want to be? While I was doing my practice after BDS, I thought I can manage patients like endo, prostho, but when it came to ortho, it's just taking impression and calling an orthodontist. So that is where I got the hint that okay, this is what I have to be. I have to be an orthodontist. What was your thought about it? Same here, like after doing BDS when I joined clinic, so that Sunday, ortho day, जिसको हम बोलते हैं जनरली क्लिनिक में, एंड दैट वाज वेरी पूरे 1 month हम वेट करते थे, अच्छा सर आएंगे या मैम आएंगे, जो भी उनके यहाँ है. तो और एंड ड्यूरिंग मेरे इंटर्नशिप डेज में भी व्हेन वी असिस्ट PGs, that was the game changer. And second, during clinic तो ortho day होता था Sunday. तो आपको बहुत फन फील होता था? नहीं, वो लेकिन वो एक डिफरेंट ऑरा होता था. लाइक जैसे मैम ने बताया कि बाकी तो प्रोसीजर हम दूसरे दिन देख रहे हैं, लेकिन वो पूरे 1 month हम उस प्रोसीजर के लिए वेट करते थे. तो वो जो ऑरा होता है ना, उससे फिर हम धीरे धीरे कनेक्ट हुए. एंड ड्यूरिंग काउंसलिंग आई वॉज वेरी श्योर कि मतलब पहला तो मेरे को ऑर्थो ही फिल करना है. आपके बारे आपका क्या विचार था इस पर? When I was doing my UG, I've never planned of doing for masters, but I remember when I was giving a university practical exam, then the external asked me, do you want to do masters or not? I said I might think, but not do in orthodontics. Okay. Finally, I'm here. Ended up here. Your next question is, who had the biggest influence in your life? For me, biggest there is not a single person I can count on. In different parts of life, at different times, I had different people whom I looked forward, and then I was like during my difficult time, okay, इसने manage कर लिया है, तो मैं भी कर लूँगी. Not age wise, not degree wise, not home wise. Like हर moment में there were different people. One constant remains is my father, but not always. Not always. At different times, different people who are encouraging. Still now, there are different people whom I see and I feel कि अच्छा इससे ये हो जा रहा है, तो I think I can also look forward to doing something like this. So, yeah. It's an obvious story. ज्योति मैम आपको? सेम वही है. एवरी स्टेज में ना आप किसी को देखते हो एंड उनसे आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीख रहे हो. टू बी ऑनेस्ट, अगर अभी ये स्टेज में भी देखें तो कभी हम कुछ स्टूडेंट्स का भी देखते हैं यूजी में भी, कि यूजी टाइम हम तो इतना लाइक नहीं कर पाए, ये चीज अच्छी है. सेम अगर हम बैक टू हमारे टीनेज या फिर और चिल्ड्रनहुड टाइम पे जाएंगे, तो तब पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मेरी मदर, लाइक she was very outspoken and very confident enough. I always हाँ ऐसे होना चाहिए. फिर जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारे स्टाफ होते हैं जनरली. एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे फ्रेंड्स हो चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो, दोनों कहीं भी ना कहीं हमको लगता है कि इतने इश्यूज हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग एंड अचीविंग समथिंग. ऐसे तो बहुत है, मतलब बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है. एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी ऐसा है कि इवन
एज अ फ्रेंड जैसे हम पोस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, तो हमारे लिए वो भी है कि ओके समबडी इज देयर, शी इज आल्सो स्ट्रगलिंग, आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग, तो वी विल मेक इट फाइनली। फिर पेरेंट्स तो एज यूजुअल होते ही हैं हमारे ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। और हम हर चीज से लर्न कर सकते हैं। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट ऑफ योर्स। मैम, व्हाट इज योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस? हु वाज योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस? My grandpa, he was the one who इनिशियली उन्होंने ही मेरे बचपन से ही मुझे इंस्टिगेट करा है कि नहीं, होना है तो कुछ अच्छा करना है लाइफ में, किसी और के लिए करना है, खुद के लिए नहीं। तो था कि हाँ ठीक है कि यही प्रोफेशन लग रहा है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए। तो वहां से वो इनिशियली स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। फिर आसपास जब चीजें बड़ी, लोग आए नए नए लोग, तो उनसे इन्फ्लुएंस हुई। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज किड देयर वाज टीवी सीरियल अबाउट डॉक्टर्स, ना ग्रेस एनाटॉमी। वो एक अलग ही इन्फ्लुएंस होता है उस चीज का। देन इनिशियली अभी आ रहा है द गुड डॉक्टर, उसके हिसाब मतलब वो एक अलग ही और उनको देख के लगता नहीं लाइफ में कुछ करना है ना। गुड डॉक्टर, यस दैट इज अ गुड सीरीज। वो एक था कि हाँ कुछ है लाइफ में, ये ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वहां से वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता गया। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। What is the one lesson you have learned from working throughout your experience and academic? I think it is a very difficult question. First of all, one single thing to take out from what you're doing right now. If only one, then I think learning has no boundaries. You keep on learning every day. That is what I learn every day. कि okay, आगे और कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप कुकीज भी बनाते हैं और आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो इसलिए How do you manage all these things? everything? If you have that in mind कि हाँ ये करना है, ये किया जा सकता है, तो then hindrance is just a part of a success, what I feel. So I feel blessed actually कि जब मेरे को लाइफ में कुछ छोटा hindrance आता है ना, I feel okay, हो रहा है, मतलब कुछ चल रहा है कुछ। So that is what I feel कि करना है, बस इतना पता हो जाना चाहिए कि करना है, फिर उसके बाद हो जाता है। भी मुश्किल आती है फिर हाँ, दैट इज व्हाट यू नो व्हेन, जब मुश्किल आती है तब यू नो कि कुछ हो रहा है, इसलिए मुश्किल आ रही है। और मुश्किल आई है तो मतलब कुछ है उस पार, इसलिए आ रही है। सो वेरी ग्रेट लेसन कि बिना मुश्किलों के थोड़ी आती है। नहीं, कोई चीज अगर इजी हो रहा है मतलब इट्स नॉट राइट, यस और कुछ हिंड्रेंस आ रहा है मींस थिंग्स आर गोइंग ऑन। And we are Yes. also get to know that how much we are more capable. ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं कि अच्छा। आई एग्री। ये करेंटली हमारी करंट सिचुएशन है एज एन इंटर्न, बहुत सारी चीजें देखी रहती है। आगे एमबीएस करना है, अगर एमबीएस नॉट तो क्या कर सकते दिस इज द फन पार्ट ऑफ योर लाइफ। करना क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एंड बिलीव मी यू कैन डू ऑल ऑफ देम। बस सीक्वेंस, प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, देन यू कैन डू एवरीथिंग। देयर इज हमने मैम ये भी इमेजिन नहीं किया था कि वन डे वी विल बी टेकिंग पॉडकास्ट एंड डूइंग दिस, वी विल बी टेकिंग वाइवास ऑफ आवर स्टाफ, वी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर नॉट एबल टू आंसर इन वाइवा क्वेश्चंस एंड वी आर आस्किंग क्वेश्चंस हियर। you can literally check our hard disks right now. We are scared. I get shocked. देखिए, तो अलग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैंने आज तक वाइवा में अच्छे से जवाब नहीं दिया, बट यहाँ पे Yes, we know you. Totally agreed, 100%. How do you feel about this podcast? It's exciting till now. Let's see. आगे क्या होता है। And see, ma'am, if you remember, during Ortho Day, I also suggested for this. So, because अभी पॉडकास्ट ट्रेंडिंग है, जनरली हम देखते हैं यूट्यूब में भी किसी को राज शर्मानी हो गए या फिर जो भी किसी को फॉलो, हाँ तो बियर बाइसेप्स, तो हम फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हमको भी ऐसा लगता है कि वाओ, तो इट्स नाइस। Nice. We were very excited to take this podcast and we were a little nervous because ortho department से सारे years बहुत डरते हैं, to be honest. I think this is the crown we should bear in our heads. Wow, you did it. No, but if we recall our UG days, we were the same. Yes. Ortho Yes. and OS, we can say. क्या पता है पॉडकास्ट के बाद शायद थोड़े थिंग्स बना रहना चाहिए। We have to maintain this. ये वाला पार्ट कट कर देना। बढ़िया रहना चाहिए। What's the funniest incident you have ever witnessed in your clinic?
ऐसा मैम कोई एक्सपीरियंस जिसमें कोई पेशेंट आया हो और आपको वो सिचुएशन और चीजें फनी लगी? I want to say अभी recent का ही है, like 8-9 years old patient था, and he was running like literally, जो हमारी चेयर होती है ना क्लिनिशियन की चेयर, एंड उसके नीचे छुप गया है। फिर उसके बाद वो रो रहा है, नहीं कराऊंगा, ठीक है वहां तक ठीक है। देन अभी मतलब मोबाइल का कितना इन्फ्लुएंस हो गया बच्चों पे, 3 मोबाइल ऐसे रखी हुई थी, वो उस पे एंगेज था। देन उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, एंड सबसे फनीस्ट पार्ट था कि डेंटल चेयर नहीं, जो क्लिनिशियन चेयर उसके अंदर छुप गया, वहां से वो निकल ही नहीं रहा है। वो अपना एक ढूंढ गया था, मैं यहाँ रहूंगा, मेरा एक्सट्रैक्शन हाइड एंड सीक चल रहा था। वी वर रनिंग बिहाइंड द पेशेंट। What was your funniest incident? To exchange our patients. My OPG used to exchange my patients. So unknowingly, my patient came to that Harshal, and he was like, "Why are patients coming to me?" But like last time, you were the one who treated him. Now I was like, "No, I'm not going to treat him." Like नहीं ऐसा नहीं होता है। Patient बहुत confused हो गया था कि मैं इनके पास जाऊँ या मैं उनके पास जाऊँ। Lastly, he went. He didn't get any treatment. That was funny. थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। Ma'am, was there any experience? अभी यार रील चल रहा है ना कि when you're doing extraction of the wife, the husband comes from behind, 500 rupees उसको बोलो 1 घंटा चुप रहेगी, 1000 rupees उसको बोलो 2 घंटा चुप रहेगी, and I just scrolled and it went away, vanished somewhere. One of very close relative of mine, so he came, I did the extraction. After I did the extraction, I was sitting. I think he also saw that reel from somewhere. I don't know. He came from behind. उसको लग रहा है कि ये प्रोफेशन में होता है कि हम पीछे से पैसा देते हैं, तो ये मतलब सामने से मेरी बीवी को बोलेगी कि अभी 2 घंटा नहीं बोलना है। So he started giving me. I was clueless for some time, some seconds, like कि ये चेयर के पीछे से मुझे पैसा क्यों दे रहे हैं? Was like कि क्या करना है इसमें? अरे आपको बोलना है ना 2 घंटे चुप रहे, बात नहीं कर। ये सिर्फ रील की दुनिया है, एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। That was what was मतलब hard to believe कि yes, it actually happened 3-4 days back. Recent. मैम और नेक्स्ट सेगमेंट इज रैपिड फायर। विल आस्क यू क्वेश्चन एंड आपको तुरंत जवाब देना है। तो फिर रैपिड करने के पहले मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। First is टी पर्सन कॉपी पर्सन? T. Braces or aligners? मैम व्हाट्सएप और फोन कॉल? phone call. Ma'am, one food you did ban for braces patient. Hard candies. Ma'am, what is yours? Chewing-gums. गुपचुप गुपचुप खा के भी पेशेंट आते हैं? हाँ, गुपचुप खा के पेशेंट आते हैं। एंड दे हैव दैट सीन कि हमने सुना है ये आप जब क्लिप्स लगा देंगे फिर हम गुपचुप नहीं खा पाएंगे, तो हम पहले गुपचुप खा लिए, अब आप कर सकते हैं हमारे। नेक्स्ट इज मैम वायर बेंडिंग और सिफेलोमेट्रिक ट्रेसिंग? सिफेलोमेट्रिक ट्रेसिंग। एकदम रेडी थी मैं इसके लिए। मैम व्हाट अबाउट यू? I think I'll go with wire bending. That's an answer coming from author. Yes. ये तो हमारा जीवन है, हम ऊपर नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ मतलब इसमें इजी और हार्ड फिलहाल दोनों ठीक है। आपके यूजी टाइम में आपको वायर की बेंडिंग भी डिफिकल्ट लगती थी कि हो जाता था एक बार में? Straightening was difficult. तो बहुत डिफिकल्ट। हाँ, उसके बाद आई थिंक ये जो स्ट्रेटनिंग, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, यहाँ तक के पसीने निकलने के बाद यूवी, यस, हार्डेस्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद ये जो क्लिनिकल है ना, वो बहुत स्मूथ और बहुत प्यारा सेगमेंट है। मैम आपको क्या होती? सेम आफ्टर यूवी सी क्लास तक जैसे से हमको फिर समझ आने लगा, ग्रेड्स मिलने लगे, तो इंटरेस्ट आने लगा। मतलब especially I can say from Adams, I developed my interest in wire bending after Adams. What about you? स्टार्टिंग से आपको सब पसंद था? लाइक मेरे को याद है कि मेरा सेकेंड डे स्ट्रेट वायर साइन हो चुका था। ओह
बढ़िया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ ये 2 महीने में हुए थे। मैं सेकंड कौन सी सर ने साइन किया था? ऐसा नहीं है तुमको। तुम्हारा श्रेष्ठ वी कैन अंडरस्टैंड। नहीं, we also lived. मैम कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई बच्चा आ रहा है बार बार वॉल दिखाने और बहुत ही खराब बना रहा है, आपको बुरा लगा है कितनी बार ही रिजेक्ट करूंगा इसका काम अब? बुरा लगने से ज्यादा आई थिंक ऐसा लगा कि अभी इसको एक बार और केबिन में नहीं देखना है, साइन करना। See, इसमें भी ना मेरे 2 पर्सपेक्टिव है। जब स्टार्टिंग इनिशियल टाइम रहता है तो इरिटेट होते हैं, या फिर लगता है कि नहीं हम और पुश करेंगे तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, तो ठीक है, बुरा नहीं लगता है उस समय, हाँ। ऑनेस्ट। बट जो वो लास्ट वाला टाइम रहता है ना, ऐसा तुमको लगता है कि लास्ट टाइम है, और ये उससे ज्यादा हमको बुरा लगता होता है हाँ। कि बस फिनिश इट ऑफ और थ्योरी पे ध्यान दो। वो लास्ट वाले टाइम time पे लगता है। जितना आप भाग रहे हो उतना ही हम ही भाग रहे हैं, हम भी तुम्हारे लिए कि आओ साइन लो, खत्म और करो। वर्स्ट पार्ट क्या है कि हम Yes. भाग नहीं सकते, एटलीस्ट हाँ। तुम करके दिखा सकते हो। अभी हम तो नहीं Yes. बोलेंगे बताओ बताओ। So see, when we were young and we dream कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, और उसके बाद इस मोमेंट में जहाँ आप अचीव कर चुके हैं, आप स्टाफ हैं, अब आप दूसरों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? से पूछो मत मुझसे कि मैंने क्या क्या अपने लिए ड्रीम किया था। I after I became an orthodontist and after I'm here teaching students and meeting all the students, I think it was destined for me to be here. Otherwise सोचा तो मैंने अच्छा भी बहुत कुछ है, तो बुरा भी बहुत कुछ है, तो that is जब I was sketching, I used to feel कि वाह यार मैं तो बढ़िया आर्टिस्ट बन सकती हूँ मैं। When I was dancing, I felt वाह इंटरनेशनल डांसर तो बन ही सकते हैं। So there was a lot of things, but yeah, where I am today, I am 100% satisfied and happy. I'm doing my job as with मतलब जितनी ईमानदारी से I can do, I'm trying to do that. That's It's a well answered question. Mom, I wanna ask you कि अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं बनते तो what would you be? IAS वगैरह मे बी, या फिर टोटली चेंज देखे तो फिर पूरा अभी जो सेक्शन चल रहा है कंटेंट क्रिएटर एंड ऑल, Content creator. यानी तो उसमें, यानी तो फिर योर IAS एंड ऑल। That's a good answer. What would you? prosecutor. Prosecutor? That's a cool answer. एज अ डेंटिस्ट हम सबके दांत देखते हैं, मतलब मैं कहीं जाता हूँ फैमिली मेंबर से मिलता हूँ, सबसे पहले दांत ही देखते हैं। तो डू ऑर्थोडोंटिस्ट सीक्रेटली जज एवरीवन स्माइल व्हेन दे मीट देम? फॉर श्योर, 100%. Every single teeth, not only set of teeth, every single teeth. At the canine rotated है, at the very central में initial crowding first है। My mom used to get irritated when I was in any marriage. जाना है ना तो दुल्हन के बारे में इसके दांत ऐसे, दूल्हे के दांत ऐसे, उनके रिलेटिव ऐसे है, मतलब लाइक मम्मी बोलती क्यों दांत देखना है लोगों के, छोड़ो। अनकॉन्शियसली क्लिक कर जाते हैं। हाँ, true. I think ये सारे डेंटिस्ट में होता है कि हम पहली बार आंखों से नहीं देखते हैं, हम सिर्फ दांत तो से देखते हैं कि इस पर्सन में ये ट्रीटमेंट हो सकता है। Yes. मैम किसी की स्माइल आपने सीक्रेटली जज की है कभी? हमेशा, all the time. Right now I am judging smiles. Yes. Ma'am, if you give one piece of advice to your younger self, what would it be? लगे रहो, that's it. जो भी करना है, I don't feel कि कोई भी सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, so that's it. जो भी करना है लगे रहो, होगा, नहीं होगा, that's it. बस करते जाओ, करते जाओ, that's it. मिलेगा नहीं मिलेगा सोचना क्यों है, करो तो सही। लेट्स सी, ज्यादा से ज्यादा नहीं ही मिलेगा ना, बैठ जाएंगे वापस जीरो में, फिर से कुछ और स्टार्ट करेंगे। Really great piece of advice. मैम आपके क्या व्यूज हैं इसमें? टेक योर डिसीजन बाय योरसेल्फ, बिकॉज एक बार वो हैबिट हो जाती है ना तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। What's yours? Go with the flow, बस आप अपने यंगर सेल्फ को बोलोगे? go with the Go flow, with the सोचना flow. नहीं है आगे का, बस go with the flow. Exactly. अभी भी शी गोज विद फ्लो, आई थिंक तुमने ले चुकी है अभी पहले डेवलप भी। हुआ है वो, इसलिए पहले नहीं था, अभी मतलब आई develop फील हुआ शी इज वेरी सॉर्टेड टाइप्स। मैम ऐसा कौन सा डेंटल इंस्ट्रूमेंट है जो आप कभी यूज नहीं करना चाहते? है। मैं मैथ्यू स्पेयर। हम ऐसा कौन सा डेंटल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मन करता है कि फेंक दें?
फेंक दूं, हाँ कोई काम करनी नहीं नहीं, आई लव डेंटिस्ट। मेरे को ऐसे सच में कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ है कि फेंक दूं। ओके मैम व्हाट्स योर That's what I'm thinking, कौन से इंस्ट्रूमेंट फेंकना है? हाँ मतलब सबका अपना अपना काम है, इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट बना है एक्चुअली। तो सबकी नीड तो है आपको। ऐसा बिल्कुल है कि एक इंस्ट्रूमेंट से मैं 4 काम कर सकती हूँ, बट फेंकने जैसा इंस्ट्रूमेंट आई डोंट थिंक कुछ कोई सा भी है। मेरा तो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई यूज्ड टू गेट अटैच विद स्मॉल थिंग्स। तो अगर वो काम की नहीं भी है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू थ्रू फॉर श्योर। मैम एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट्स द फनीएस्ट मिथ यू हैव हर्ड अबाउट ब्रेसेस? हाँ, एक ये है कि लोगों को लगता है कि एक एज के बाद आप ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, दैट इज अ मिथ। और मैं एक और मिथ है, सबको स्पेसिंग केसेस भी ना स्टिल दे विल फील कि एक्सट्रैक्शन होगा, फिर आई विजन लॉस होगा, सो ऑर्थो तो ऑप्ट ही नहीं करना है। आप उसमें मतलब प्रोसेसेस दे दो, कुछ भी कर दो, ब्रेसेस नहीं, क्योंकि उसमें तो एक्सट्रैक्शन ही होता है। वो पहले ही उनका माइंडसेट बना हुआ है। बट हाँ, फनीएस्ट नहीं, ये बेसिक हाँ बस एक मिथ है बस। ओएस में मैम अभी मैं ओएस में पोस्टेड हूँ, वहाँ पेशेंट्स जो पेशेंट की ओपीडी करते बोलते हैं इससे मेरे आँख तो खराब नहीं होती। हाँ, ये सबसे कॉमन मिथ सुना है मैंने। What do you enjoy more, treating patients or teaching students? treating patients. Treating patients. Ma'am, what do you? ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर श्योर, फॉर श्योर। Treating patients. So nobody enjoys teaching us. I enjoy teaching, but when it comes back to you ना, इन बच्चों को पढ़ाया था, इनको कुछ घुसता ही नहीं है दिमाग में। आई यूज्ड टू गेट द बुक एंड रीड वंस अगेन कि मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा के आ गया। मेरे को तो हमेशा, मैंने बोला भी क्लास में कि मेरे को ये सच में फील होता है जब इतने रबिश आंसर आते हैं, मुझे लगता है मैंने सही है। तो पेशेंट ही ट्रीट कर लेते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे भी यार कॉन्फिडेंट इनफ, पेशेंट भी बोल रहा है हाँ पिछली बार से चेंज दिखा, तो हमारा भी कॉन्फिडेंट वो यहाँ तो लूज ही हो रहा है बस। इधर है दैट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, ट्रीटिंग पेशेंट्स। इधर ये जब आके बोलते हैं ये क्या चल रहा है, मैंने 1 घंटा इनके ऊपर वेस्ट कर दिया, इनको कुछ नहीं समझ में। What quality makes an average student become an exceptional dentist? कंसिस्टेंसी, नो मैटर व्हाट। I agree. इवन आपके फाइनल ईयर्स या जो भी ईयर में आपके कम मार्क्स आ रहे, इवन आप 6 months बैक हो, नो इश्यूज। इंटर्नशिप में आपको ऐसा लगा कि अरे इसने तो कोई क्लिनिक अच्छी ज्वाइन कर ली, मैंने तो अपने इंटर्नशिप वेस्ट कर दिया, ठीक है मुझे अब एमडीएस नहीं करना। नो, गो फॉर इट, मतलब एक्सेल करो। एमडी पीजी करना चाहिए फॉर श्योर, एक्सेल करते जाओ। पीजी में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये तो अच्छे से नहीं हुआ, मैं पीजी में और अच्छा कर सकती थी, देन आप अभी भी लर्न कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आर्टिकल्स पढ़ते रहो। इफ यू आर कंसिस्टेंट ना, कितना भी आपको पीछे से मिल रहा है कि नहीं ये तो गलत कर रही है, तो गलत कर रही है, इतना अच्छा नहीं कर पाई, क्या ही करेगी, स्टिल कंसिस्टेंट, मैं करूंगी एंड वन डे वी आर गोइंग टू अचीव फॉर श्योर। और मैं नहीं बोलूँ डायरेक्ट टॉप को सोचो, जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने में खुद छोटी छोटी चीज में चेंज दिखता है, तब समझ आता है कंसिस्टेंसी की वैल्यू। एंड विद कंसिस्टेंसी आई ऐड, आपको आपके पेशेंट्स को सुनना और समझना जरूरी है। How you treat the patient, Yes. क्लिनिकली ट्रीटमेंट नहीं, आप उनसे कैसा बिहेव कर रहे हो, वो एक लॉन्ग टर्म वाली चीज है। अगर आप पेशेंट से बिहेवियर आपका चेंज नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म गोल कुछ नहीं। बिहेवियर इज You know everything and now ये प्रॉब्लम है, ठीक है पेशेंट बता रहे हैं, इफ यू आर नॉट ईयर्स, इफ यू आर नॉट गिविंग ईयर्स, देन पेशेंट समझ जाएगा कि नहीं, मेरे को वाइब से आ वो जाती है। वाइब से आती है। आपसे relate ही नहीं यू कर हैव टू पाएगा। अंडरस्टैंड दैट यू आर अ केयर गिवर। सी आपने सुना है You have to ना हमको, understand तो जाके ही मैं ठीक हो गई। एज अ पेशेंट मैंने भी ये लाइन शायद बहुत बार बोली है, मैम को भी पता है मैंने बोला ये चीज कि अगर समझो तो मैं जाके ही मैं ठीक हो गई। तो वो वाइब आनी चाहिए तुम्हारे पेशेंट को तुमसे। ट्रीटमेंट प्लान तो देखो आर्टिकल्स हैं, फ्रेंड्स है, गाइडेंस है, स्टाफ एनी टाइम अवेलेबल है, मतलब आफ्टर कॉलेज भी। लेकिन जो वो वाइब है ना, वो सिर्फ अपने पेशेंट को तुम ही दे सकते हो कि नहीं ये मेरा हर चीज सही के लिए, इफ ही और शी इज चार्जिंग मोर देन वो मेरे सही के लिए है, ये जो भी मेरे को सजेस्ट कर रहा है वो मेरे सही के लिए, उतना बस उसके दिमाग में फिट हो जाए। हम आजकल के जनरेशन्स में तो आई एग्री कि ऐसा होता है कि आजकल लोग सिर्फ चाहते हैं कि कोई मेरी बस प्रॉब्लम सुन रहा है। हाँ
चाहिए, गुड लिसनर्स की कमी है उसकी। And you are sitting, I mean, we are sitting at a place where we have to listen. So we have to develop that. हम भी इंसान है, हमें भी एक दिन दो दिन में नहीं आता है, but then you will have to make sure that you listen to the problem. वो डेंटल इशू के लिए साथ भले आएगा चीफ कंप्लेन में आपको डेंटल इशू, बट वो ट्रीटमेंट प्लान या जब आपके कंसल्टेशन में पहुंचे थे वो अपने पूरे घर की बातें बताने लग जाएगा। अब तब आपको सुनना है, और सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ सुन रहे हैं, सुन के मतलब उसको लगना चाहिए आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, समझ रहे हो, वो सब मैटर करता है। So at the end, consistency, being a good listener and being a kind person is very important to be a good dentist. Yes. Be a good person. Be a good You'll be good person. at everything. हाँ, Just be a good person. Irrespective of any profession. 100% I agree. Yes. वो बोलते हैं ना कुछ भी बनो मुबारक है, पहले इंसान इंसान बनो। बनो, true. बस वो वाली बात है। Agree. I hope our listeners take this exceptional thought कि इस चीजों से इंस्पायर हो, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, और हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में तो ऑलरेडी विल लर्न एंड विल डू बेटर व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट सारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे, फैकल्टीज भी देखेंगे, तो एक वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम इंटर्न्स के लिए। सॉर्टेड होना चाहिए, आपको बस अपना गोल देखना चाहिए। ठीक है, साथ में चीजें आती है, हर्डल्स आएंगे, बट गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा सॉर्टेड रहना चाहिए चीजों। हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन, बट हार नहीं मानना है उस चीज को लेकर। I want also to add one thing. Be a unit. See, हमने ना ये प्रॉब्लम देखा है, जो अभी इंटर्नशिप बैच है, वो चीज जो हमने बताया वो सीनियर्स को नहीं पता, मतलब तुम्हारे फाइनल ईयर्स को नहीं पता, फाइनल ईयर वालों को जो बताया वो थर्ड ईयर्स को। बी अ यूनिट, मेरे को ऐसा लगता है यूनिटी ना आज के डेट पे बहुत, मतलब तुम लोग का जो जनरेशन है बहुत जीरो हो गई है ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग। थोड़ा सा कम्युनिकेशन, फोन में ही शायद इतने हो गए हैं क्या कि स्टाफ ने एक को भी बताया तो 100 को पता चल जाता था पहले, बट अभी ऐसा नहीं है। तो मतलब कम्युनिकेट करो बस। पहले कैसे लोग फोन की जगह हॉस्टल में एक कमरे में बैठ के सारे बैठे हुए हैं साथ में, अभी क्या है सब बैठे हैं लेकिन हाथ में फोन है। हाँ। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कम हो गया आपस बी में। अ टीम, मतलब ठीक साथ है, में बैठो। अगर कोई पीछे ना तो उसको खींच के अपने साथ हाँ। लेके चलो, वो पीछे ही छोड़ दिया वो वाला एटीट्यूड थोड़ा सा है। सब हमारी जनरेशन में थोड़ा सा है। बी अलाइव। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज नहीं हो पाया तो अब दूसरी चीज नहीं हो पाएगी। टैग कर लिया अपने आप को, ये तो नहीं हो पा रहा है, शायद आई एम अ फेलियर। हाँ, ये टैग, देयर इज नो टैग, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आप फेलियर हो तो दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। बस इतना ही करना है, बी अलाइव, कि आज फेलियर है कल शायद सक्सेस भी है। सो दैट इज, एक नरेंद्र मोदी जी का ही है कि रात कितनी भी गहरी हो हमको पता होना चाहिए कि वो रात ही है और दिन तो होनी ही है। सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट आई विल से टू एवरीवन। कुछ भी हो, कितनी भी डिफिकल्टी हो, यू विल हैव टू नो कि रात है और गहरी होगी, डार्केस्ट होगी, उससे ज्यादा क्या होगी, बट उसके बाद दिन तो आएगा ही आएगा। Out of 10, how much would you rate our podcast? 10। Yeah, out of 10, 10, yeah. It's the highest one. Yes. हमने last podcast में हमें 9 मिला था. We are doing 9 better. is a good mark. Yeah, it is. तो कहाँ कमी रह गई? Apart from empty glasses. We are very sorry. हो गया ना, ये 10 हो गया। प्लस हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। Thank you so much. Thank you ma'am, so for being much, here. ma'am. Yes.